Good morning, students. I am going to teach you subject construction material. So, first of all, we all need to know about the construction. Construction refers to any project that involves coming up with design for a structure at a certain location and then putting together all the different elements to build that structure. कंस्ट्रक्शन मीन्स कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गया या हाउस हो गया विद द मटेरियल लाइक सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ये होता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मटेरियल सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स। सो our class is about building stones. What is building stones? Stones from one of the most important building material in civil engineering. Stones are derived from rock, which from the earth crust and have no defined shape. Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. Yes, Uh, ma'am. okay. Our chapter is building stones. Uh, our class is about building stones, but we have to read about rock before read about stones. What is rock? An aggregate of minerals which from the earth crust is known as rock. क्या होता है रॉक? जो मिनरल हमें एग्रीगेट के रूप में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, उसे क्या बोलते हैं? रॉक। रॉक समझते हो क्या होता है? पत्थर जी। चट्टानें जो होती है ना, उसको हम रॉक बोलते हैं। ठीक है। स्टोन्स स्टोन्स हमें मिलते हैं रॉक से मिलते हैं। स्टोन्स आर नेचुरली अक्रिंग compact, solid and messy material that make the crust of the earth. Technically, the stones are called as rocks. The rocks occur in great variety. The rocks possess suitable properties often find use in building stones. It follows that building stones are rock in nature or rocks may not be useful as building stones. So, ये building stones है. Introduction about building stones. Stones have been used in all type of construction. बिल्डिंग स्टोन्स को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रॉक। रॉक के बारे में हमें सबसे पहले रॉक की हमने डेफिनेशन पढ़ी। रॉक डेफिनेशन क्या होती है? एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल विच फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक। जो मिनरल हमें एग्रीगेट के रूप में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट से, उसे क्या हम बोलते हैं? रॉक। रॉक की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। आपने देखी होगी रॉक चट्टानें कैसी होती हैं। नो होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स इसके पार्टिकल्स सेम नहीं होते। These are having no definite shape, no homogeneous. Rock consists of two or more compounds. It consists of two or more compounds or elements. Classification of stones. Stones or rocks. The building stones are classified in three ways: geologically, chemically, and structurally. In geological classification, it is further divided into three types: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Physically, uh, on the base of physical classification, stratified rocks, unstratified rocks, and foliated rocks. Chemical classification में silicious rocks, argillaceous rocks, and calcareous rocks. First, मैम ਇਹ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿਦਾਂ ਜਿਓलॉजिकल ਕਿਦਾਂ ਸਮਝਾਇਓ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। फर्दर इसकी फर्दर मैं डेफिनेशन बताऊंगी इसकी।
ये तो 3 टाइप में इसको डिवाइड करा है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। इसकी डेफिनेशन मैं फर्दर बताऊंगी। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। Geological classification: this classification is based on mode of formation of rock from which building stones are obtained. 3 main group recognized are, जो हमारी जियोलॉजिकल में फर्स्ट है हमारी इग्नियस रॉक, all those rocks of the earth that have been formed by the natural process of cooling and crystallization from originally hot and molten magma are grouped as igneous rocks. They are most abundant rocks in the crust when considered depth wise. In fact, the igneous rocks are further distinguished by geologists into 3 subclasses on basis of their depth of information. Now, igneous rocks होती क्या है? जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ सरफेस है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करें उसको। फर्स्ट होती है हमारी फर्स्ट होती है अर्थ, सेकंड होती है मोल्टन, थर्ड होती है कोर। जो हमारी सेकंड वाली मिड वाली होती है मोल्टन, उसमें क्या होता है, लावा होता है, टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो हमारा लावा है वो बाहर निकलता है। आपने वोल्केनोस देखे होंगे, ज्वालामुखी देखे हैं ना? हाँ जी स्टूडेंट्स। देखिए। ओके, वोल्केनो के बारे में सबको पता होगा। जब लावा बाहर आता है तो क्या होता है, वो मतलब कई सालों तक गर्म रहता है, कितने साल लग जाते हैं उसको ठंडा होने के लिए। वो कुछ तो लावा है जो अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है, कुछ अर्थ सरफेस के अंदर चला जाता है। तो जब वो मतलब ठंडा होता है, जो सॉलिड जो है वो पोजीशन में आता है, तो वो क्या रॉक की फॉर्म ले लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक। जब वो मैग्मा सारा सॉलिडिफाई हो जाता है तो वह किसका रूप ले लेता है, वो इग्नियस रॉक का। इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, जो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है। समझ में आया इग्नियस रॉक कैसे बनती है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। इग्नियस रॉक्स की भी फर्दर टाइप्स हैं आगे। जो इग्नियस रॉक है उसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ये कैसे बनती है, मैग्मा सॉलिडिफाई होने के कारण। और इसको इसको फर्दर इसकी टाइप्स है। हाँ जी, इग्नियस रॉक की फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक होती है प्लूटोनिक, वोल्केनिक एंड हाइपरबेसिक। प्लूटोनिक रॉक्स, ये इग्नियस रॉक की फर्दर टाइप्स हैं। These are formed at greater depth below the surface. They are exposed the These are formed at greater depth below the surface. They are exposed on the surface by erosion of the overlying secondary rocks with the passage of time. They are coarsely crystallized, that is, the component of crystals can be easily seen without the help of magnifying glasses. इसकी examples are granites, cyanites, and gabbros are typically igneous plutonic rock. Plutonic rock basically होता क्या है? प्लूटोनिक रॉक हमें कैसे मिलती है, अर्थ क्रस्ट के नीचे। जो लावा है वो कुछ तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, कुछ अर्थ क्रस्ट के नीचे चला जाता है। जो नीचे चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो रॉक बनती है जाके उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। जी, हमें अर्थ क्रस्ट के नीचे मिलता है प्लूटोनिक रॉक की। ये सी द पिक्चर ऑफ प्लूटोनिक रॉक। क्लियर है ये सबको?
क्लियर है, क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है इग्नियस रॉक की सेकंड टाइप है वोल्केनिक रॉक। These are formed on the surface of Earth from lava coming out of numerous volcanoes that erupt from time to time. Basalt and trap rocks are very common examples. The constituent minerals are so small that they can be seen only after magnifying under microscope. जो वोल्केनिक है वो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। वो नीचे मिलता था, ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही मिलता है। इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। ये भी वोल्केनिक एक्सप्लोजन के कारण मिलता है हमें। इसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। नेक्स्ट है हाइपाबेसल। इसकी थर्ड, फर्स्ट थी प्लूटोनिक, सेकंड थी वोल्केनिक एंड थर्ड है हाइपाबेसल। These are formed at shallow depths about 2 to 3 kilometers below the surface from magma that could not come out as lava. They show crystals that are partly coarse and partly fine. In size, rock known as porphyrious belong to this group. हाइपाबेसल रॉक बेसिकली होता क्या है, ये हमें 2 to 3 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ मिलता है। ये होता है प्लूटोनिक और वोल्केनिक के बीच में मिलता है। प्लूटोनिक और वोल्केनिक के बीच में जो मिलते हैं हमें उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपाबेसल रॉक। ये थ्री टाइप्स क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स क्लियर है, क्लियर। ओके, ये थी इग्नियस रॉक की थ्री टाइप्स। जियोलॉजिकली बेस पे है। फर्स्ट इग्नियस रॉक थी, उसको हमने फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था। सेकंड जियोलॉजिकल के बेस पे सेडिमेंट्री रॉक। ये है हाइपाबेसल की पिक्चर है। नेक्स्ट हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। They are the most widespread rocks found covering a great part of the surface of Earth. The sedimentary rocks are formed from any type of pre-existing rock by a simple process of breakdown into smaller particles under the influence of natural agencies like wind, water, and ice and atmospheric gases. सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है? सेडिमेंट्री रॉक को हम सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक मींस जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक इग्नियस रॉक हो सकती है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक जब वेदरिंग एजेंसीज के कारण जैसे हो गया विंड के या वाटर के थ्रू या ग्लेशियर्स के थ्रू जो मतलब बनती है रॉक, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है सबको? ट्रांसपोर्टेशन होती है, जब डेपोजिशन होती है, कंपैक्शन होती है, क्रिस्टलाइजेशन होती है, या ऑर्गेनिज्म होते एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है सेडिमेंट्री रॉक होता क्या है? ये रनिंग वाटर और ग्लेशियर के कारण बनती है, जो सालों तक इकट्ठे होते रहते हैं। ग्लेशियर्स जब वाटर थ्रू जो हमें रॉक क्या पार्टिकल्स इकट्ठे होते रहते हैं हजारों सालों तक, तो वो क्या फॉर्म ले लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म ले लेते हैं। उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है ये सेडिमेंट्री रॉक? क्लियर है, क्लियर है। The natural process of rock disintegration are called weathering and erosion. इरोजन मीन्स जो वाटर के थ्रू इरोजन होती है, तो हजारों सालों तक वो एक जगह पर इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो क्या सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म ले लेते हैं। द सेडिमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल एजेंसीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय दीज वेरी नेचुरल एजेंसीज to riverbed, lake, basin, seas and oceans, where this deposition takes place for millions of years. Gradually, the particles so deposited are
compressed under their own leach into hard massive rocks called secondary rocks. इसको secondary rocks भी बोलते हैं. Since they are formed of sediments, it is quite appropriate to call them sedimentary rocks. See the picture of sedimentary rocks. इसकी भी further 3 types होती है. Just like igneous rock की जैसे होती है, या sedimentary rocks may also be formed in different manners. These subgroup of sedimentary rocks are clastic rocks, chemically formed rocks, organically formed rocks. Clastic rocks. These are sedimentary rocks formed by deposition and consolidation of disintegration sediments and fragments from the previous rocks in suitable river basins. Previous rock means igneous rock. Suitable river basin, lake and sea basin, etc. They are most widespread, and ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन डेपोजिशन एंड कंपैक्शन थ्रू होती है, जैसे वेदरिंग एजेंसीज के कारण जो बनती है उसको बोलते हैं क्लासिक रॉक. They are most widespread and include such as sandstones, hails, breccias, and conglomerate. Sandstones are made mostly of silica grains fused together or thoroughly compacted under natural environment. They form very type of building stones. Very good type of building stone. Next is chemically formed rock. Formed by chemical action. जो केमिकल एक्शन के द्वारा होती है उसको बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक. ये होती है लाइक प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स. इसके एग्जांपल है लाइमस्टोन. केमिकली फॉर्म्ड रॉक. Many sedimentary rocks are precipitated from river, lake, and especially from seawater by evaporation, etc. Some of the components of previous rock are taken in solution during the process of weathering and erosion. The water may get saturated with these compounds with passage of time and precipitate them. The huge accumulation of these precipitates and evaporates ultimately may form rock deposit of considerable importance. Limestone, gypsum, and anhydrite and rock salts and are few examples of chemically formed sedimentary rocks. None of them used as building stone. इनमें से हम किसी को भी बिल्डिंग स्टोन की यूज नहीं कर सकते एज ए बिल्डिंग स्टोन्स. ठीक है. केमिकली फॉर्म्ड मीन्स फॉर्म्ड बाय केमिकल एक्शन. प्रेसिपिटेशन थ्रू जो होती है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पार्टिकल थ्रू होते हैं, उसको बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक. नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फॉर्म्ड रॉक, जो फॉर्म्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लाइक आपके जैसे ट्रीज हो गए तो उनके पत्ते वगैरह गिरते हैं तो एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं. एज वी नो दैट मोर देन 70% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशंस. ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इन दीज ग्रेट वाटर बॉडीज. Many sea animals have their hard parts made up of bones which are a mixture of calcium and magnesium carbonates. These parts accumulate at proper places on seafloor. Gradually, huge thickness of such deposit get formed and compacted and consolidates with passage of time. These are organically formed sedimentary rocks. The best example of organically formed sedimentary rock is a great variety of limestone, which now form the greater part of many mountains of the earth, including Himalayas. Many massive type of limestone form best type of building stones. इसमें क्या होता है, जो हमारा 70% है वो अर्थ सरफेस है, वो वाटर, उसमें क्या ओशंस हैं, सी है, वाटर है, समुद्र वगैरह हैं. ग्रेटर वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग लाइक मैनी सी एनिमल्स है वहाँ पे. तो हार्ड पार्ट मेड अप ऑफ बोन्स है, उससे जो हमें ऑर्गेनिकली मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, और ऑर्गेनिक फॉर्म्ड रॉक. ये 3 टाइप्स हैं इसकी, जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड है, केमिकली फॉर्म्ड है और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है. ये थी सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है बेसिकली, इसको सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वस रॉक. ये होती कैसे है,
ग्लेशियर थ्रू, रनिंग वाटर थ्रू, हजारों सालों तक जब इकट्ठा होते रहते हैं उस तो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। These are originally either igneous or sedimentary rock. मेटामॉर्फिक रॉक होती क्या है? ये इग्नियस रॉक भी हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है। कैसे? अगर इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, उस पर जब टेम्परेचर वेरिएशन आती है तो उसको टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, प्री एग्जिस्टिंग मीन्स इग्नियस रॉक भी हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है। उस पर जब टेम्परेचर वेरिएशन आती है तो वो कौन सी फॉर्म लेती है? मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म ले लेती है। These are originally either igneous or sedimentary rocks. The process for their change under the influence of increased temperature, pressure, and chemical environment is called metamorphism. When an existing rock gets subjected to increased temperature or change stresses and chemically active fluids, it undergoes a slow but definite change in its original structure and chemical composition. The new rock so formed is called as metamorphic rock. Metamorphic rock होता है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, जब उसके ऊपर जब टेम्परेचर वेरिएशन आती है तो वो कौन सी फॉर्म लेती है? मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म ले लेती है। जब उसके ऊपर लगातार प्रेशर लगता रहता है और प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन के कारण वो बनती है। इसकी एग्जांपल होती है मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, नीज हो गया, एटसेट्रा। इसकी एग्जांपल्स है। क्लियर है ये मेटामॉर्फिक रॉक? कंटिन्यूसली टेम्परेचर वेरिएशन और प्रेशर पड़ने के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म ले लेती है, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक आर मार्बल एंड स्लेट। जैसे कि मैंने बताया मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, नीज हो गया, इसकी ये एग्जांपल्स हैं। मार्बल इज formed in natural environment by very gradual heating of sedimentary rock. Limestone in its natural environment, the heating may be caused by rise of magma from below in a limestone area. Similarly, another sedimentary rock shale may be formed combined action of temperature, pressure, and chemically active fluids that it gets changed to a metamorphic rock slate. The nature of change of an original rock depend on following factors: the type of agents, operating temperature, pressure, chemically active fluids. वही है, टेम्परेचर वेरिएशन आ गई, प्रेशर हो गया, केमिकल एक्शन हो गया। That duration of operation of the above agent, the nature and composition of original rocks. Some very common metamorphic rocks are marble, quartz, gneiss, slate, schist. The first three rocks are very good building stones in many cases. थर्ड क्लासिफिकेशन है केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट थी जियोलॉजिकल, सेकंड थी हमारी फिजिकल, थर्ड आ गई केमिकल। On the basis of dominant chemical composition, following three main groups of rocks are commonly recognized. इसकी भी फर्दर थ्री टाइप्स है। फर्स्ट जियोलॉजिकल की भी थ्री टाइप्स थी, उसकी भी फर्दर थ्री टाइप्स थी, और फिजिकल की भी थ्री टाइप्स थी, एंड केमिकल की थ्री टाइप्स है। स्लेशियस होती है, ग्लेशियस होती है, कैल्केरियस होती है। फर्स्ट है हमारी
ये केमिकल एक्शन के कारण होती है, उसको हम बोलते हैं ये केमिकल क्लासिफिकेशन होती है, केमिकल एक्शन थ्रू होती है। सिलिशियस रॉक, these rock have silica SiO2 as predominant component that is more than 50% of the bulk composition of rock. सिलिशियस रॉक होता क्या है? सिलिशियस रॉक होता है हैविंग सिलिका और सैंड। जिस रॉक में सिलिका होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सिलिशियस रॉक। इसमें क्या होता है? 50%, मोर देन 50% सिलिका होता है, अवेलेबल होता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं? सिलिशियस रॉक। These include variety of quartzites. Naturally, they are classed among the strongest type of building stone. Some other rock like granites, sandstones, and gneisses are also made up of silica in combined form. Clear है ये? जिसमें सिलिका होता है उसको क्या बोलते हैं? सिलिशियस रॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है कैलकेरियस रॉक। In these rocks, the dominant component is a carbonate, generally of calcium, but often with magnesium. Most commonly, they belong to sedimentary and metamorphic group of rocks. Limestone, dolomite, and marbles are entirely carbonate rock and all form good building stones. Calcareous rock, the rock having calcium carbonate or lime. जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैलकेरियस। सिलिशियस रॉक थी जिसमें सिलिका होता है। कैलकेरियस रॉक जिसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैलकेरियस रॉक। क्लियर है? कैलकेरियस रॉक की एग्जांपल है लाइमस्टोन, मार्बल, कंकर। कैलकेरियस रॉक की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन की थर्ड टाइप है एरेग्लेशियस रॉक्स। They are mostly sedimentary rocks having clay, hydrous, aluminosilicates of as a dominant constituent. They are invariably soft and untrustworthy as building stone and untrustworthy as building stone. Shales, slates, schist are examples. रेगुलेशियस रॉक्स होती क्या है? रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले। जिसमें एल्यूमिना और क्ले प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेशियस रॉक बोलते हैं। इसकी एग्जांपल होती है स्लेट होगी, शेल्स होगी, चिस्ट होगी, इसकी एग्जांपल है। जैसे हमारी सिलिशियस रॉक्स थी उसमें सिलिका हो गया, कैलकेरियस रॉक थी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, रेगुलेशियस रॉक उसमें क्या हो गया? एल्यूमिना हो गया, एल्यूमिनियम और क्ले हो गया। उसको क्या बोलते हैं? एरेग्लेशियस रॉक। ये थी 3 टाइप्स ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। See the picture of Aragillaceous rocks. Structural classification. Broadly speaking, in apparent structure, the rock stones may either be found in the form of undifferentiated masses or they occur in very well-defined layers or sheets. A third category is foliated rocks. Foliated rocks means splitted into thin sheets, जिसको हम तोड़ फोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं foliated rocks. इसको थिन शीट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं foliated rocks. फर्स्ट होती है इसमें, ये किसके बेस पे होती है? ये बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे होती है। फर्स्ट है हमारी मैसिव और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक. These rocks occur in huge students. Students, we will continue with the next session. Next class join कर लो. Am I audible? अंकित,
Join the next class, students.